talking about the canal system in sponges. What is canal system and what is the use of canal system? So the water circulatory system of sponges, also called as the canal system, is the characteristic feature of the phylum Porifera. Poriferas are those animals which bear spore on their body. Canal system is also known as the aquiferous system. The canal system of sponges help in the number 1 food intake, number 2 respiratory gas exchange, and also in the excretion. As we know earlier, the numerous pores on the body surface of the sponges are used for ingression or ingestion and excretion of water current are the main constituent of the canal system. Inside the body, the water current flows through a certain system of spaces whereby the food is captured from the incoming water and the excretory matter is sent out into the outgoing water. What are the basic functions of water canal system? The water current plays the main vital role in the all physiology of the sponges. The body wall of the sponges consists of two epithelioid layer. The outer one is called as spinacoderm and the inner one is called as coenoderm. The spinacoderm consists of porocyte cells which bear opening called pores or ostia. Coenoderm is composed of coenocytes or collar cells. The coenocytes have collar or microvilli around the flagellum. In the center, a flagellum is situated and around that flagellum various microvilli are situated. The water current is caused by the beating of flagella of the collar cells. तो जितने भी collar cells में flagella हैं, they एक proper form में beating of water करते रहते हैं. The following are the function of the water current. Number 1, all exchanges between the sponge body and the external medium are maintained by means of this current. Number 2, the food and oxygen are brought into the body through this water current. Number 3, also the excreta are taken out of the body with the help of this water current. And number 4, the reproductive bodies or gametes or larvae are carried out and into the body of the sponges by the help of this water current. The typical canal system is composed by various components and these components could be number 1, the incurrent canal. What is incurrent canal? The incurrent canal opens extremely to the outside by a small pore known as the incurrent pore or the ostium, also called as ostia, but internally it ends blindly. Or we can say this incurrent canal, ये बिल्कुल externally, बिल्कुल outside of the sponge हमें situated दिखाई देती है और इसकी ending को हमने नाम दिया ostium. और इसका जो इंटरनली एंड है ये ब्लाइंडली हमको दिखाई दे रहा है. नंबर 2, रेडियल कैनाल और एक्सक्रेंट कैनाल. इट इज क्लोज्ड एक्सटर्नली बट ओपन इंटरनली. सिचुएटेड कौन सी पोजीशन पर है? एक्सटर्नल पे. और ओपन कहाँ पे हो रही है? इंटरनल पे. और कौन से पोर की हेल्प से ओपन हो रही है? बाय द माइन्यूट पोर्स और एपोपाइल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोएकल कैविटी, also called as gastral cavity. और finally it is called as spongocoel. तो जो सेंटर में कैविटी है जिसको हमने क्लोएकल कैविटी कहा, आपको याद नहीं रहे तो आप इसे गैस्ट्रल कैविटी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको कहते हैं द स्पंजोसील, which cannot be compared in any way with the stomach or intestine of the other animal, but it is a central cavity anymore. So the third part is called as the prosopile. Prosopile is a smaller canal, okay, और also a passageway, intermediate एक way है which connecting किसको? Number 1, the incurrent canal, और उसको किससे बाइंड करने का काम करता है? ये रेडियल कैनाल से. So the incurrent canals are lined by number 1, the flat squamous cells,
and their functions are only to form water conduits and to form a smooth and firm surfaces. The radial canals are lined by the collar cells opening at the surfaces and are provided with either flagella or whips. So whip-like movement it can show. The lashing movement of flagellum procure the food particles and push them into the cell mouth. Thus, this is the food capturing arrangement of sponges. The spongocoel or the cavity which is lined by the thin gastric epithelium. It opens to the outside by an aperture. जो ऊपर की तरफ हमें एक चौड़ा सा aperture दिखाई देता है, that is called as the osculum. The arrangement, number 1. Number 2, the complexity, कि how much it's simple or how much is complex. So the arrangement and complexity of the canal system varies considerably in the different sponges and has been divided into 4 categories. Basically हम 3 categories की बात करते हैं, Ascon type, Sycon type and Leucon type, लेकिन इसका एक intermediate form भी हमें दिखाई देता है which is called as Regon type. अगर आप normal answer लिखते हैं canal system पे तो you can skip the Regon type from this category. So the simplest one is the Ascon type. The Ascon type, this canal system is the simplest of all the 3. It is found in the ascenoid type of sponges, like simple most sponges. Examples are the Leucosolenia and also in the some developmental stages of the sycanoid sponges. जो larvae of cycons होते हैं उसमें भी हमें एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम दिखाई देता है जो कि फर्दर जाके डेवलप हो जाता है साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में. So the body surface of the ascenoid type of sponges is pierced by a large number of minute openings. मैंने आपको पहले बताया था पूरी बॉडी इसे कंटेन करती है and these openings are called as incurrent pores or ostia or pores. These pores are intracellular spaces within the tube-like cells also called as porocyte. यानी स्पोर के चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं पोर के चारों तरफ called as the porocyte. एस्कॉन टाइप के क्या करेक्टर्स हैं? तो ये जो एस्कॉन टाइप है इसमें मैंने कहा कि पोरोसाइट प्रेजेंट रहते हैं और ये जो पोर्स हैं इनका जो एक्सटेंशन है ये रेडियली किसमें है? मेसेनकाइमा में, और इसे ओपन किया जा सकता है किसमें? डायरेक्टली स्पॉन्जोसील में. स्पॉन्जोसील क्या है? सेंट्रल कैविटी है. सो द स्पॉन्जोसील इज द सिंगल लार्जेस्ट स्पेशियस कैविटी इन द बॉडी इन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज. द स्पॉन्जोसील के चारों तरफ एक लाइनिंग रहती है. द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द फ्लैटेंड collar cells also called as the choanocytes. This spongocoel open outside through a narrow circular, it's an opening also called as the osculum. This osculum is located at the distal end and it is fringed with a large monoaxon spicules. Spicules के बारे में हम पढ़ चुके हैं. कैल्केरियस स्ट्रक्चर है, कैल्शियम कार्बन का बना हुआ है और ये उस ऑस्कुलम के चारों तरफ अरेंज्ड पैटर्न में हमें दिखाई देता है. So the overall the surrounding sea water enters in the canal system through the ostia. The flow of the water is maintained by the beating of flagella of the collar cell. The rate of the water flow is slow as the large spongocoel contains much water and which cannot be pumped out through a single osculum. तो स्पीड कम हो जाएगी जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है और स्पीड वाटर इनटेक की बढ़ जाएगी जबकि अंदर की तरफ से जो वाटर है वो ऑस्क्यूलम से एग्जिट आउट कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल्स मैंने आपको ल्यूकोसोलिनिया दिया है, कुछ सिंपल स्पॉन्जेस हो सकती हैं. तो ल्यूकोसोलिनिया के अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं क्लेथेरना. और जो कोर्स ऑफ वाटर करंट है इस कैनाल सिस्टम का, इसको मैं फॉलोइंग जो लीनियर अरेंजमेंट है इसमें दिखाऊंगी. नंबर 1 इंग्रेशन ऑफ वाटर किससे? विद द हेल्प ऑफ डर्मल ऑस्टिया.
कहाँ पर? इन द स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील से दिस वाटर एंटर्ड इनटू ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से जाते ही ये कहाँ पे निकल जाएगा? द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। डायग्रामेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये है सारे ऑस्टिया, दीज आर द ऑस्टिया। ये देखिए, ये आपको डर्मल ऑस्टिया दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये जो डर्मल ऑस्टिया हैं, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, है ना। यहाँ से जो डर्मल ऑस्टिया हैं, ये जो आपको बाहर से पोर दिखाई दे रहा है, यहाँ अंदर की तरफ आपको एक किनाल दिखाई दे रही है इससे जुड़े हुए, तो दीज आर द डर्मल ऑस्टिया। इस डर्मल ऑस्टिया से पानी अंदर की तरफ गया और अंदर की तरफ आपको ये फ्लैजिलेटेड सेल्स अरेंज दिखाई दे रही है। ये येलो कलर की जो आपको सेल दिखाई दे रही है, दीज फ्लैजिलेटेड सेल्स आर कॉल्ड एज कोइनोसाइट्स। यहाँ से पोरोसाइट से होता हुआ जो वाटर है वो स्पॉन्जोसील में सेंट्रल कैनाल में, यहाँ सेंट्रल कैनाल में एंटर करता है हर एक पोर से। और बाहर की तरफ वाली जो सेल हैं, मैंने आपको पहले बताया, इन्हें मैंने नाम दिया पिनेकोडर्म, रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है। सेंट्रल में एक लिक्विफाई फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉट अ लेयर बट कॉल्ड एज द मेसेंकाइमल फ्लूइड। और सबसे अंदर की तरफ ग्रीन लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसको मैंने नाम दिया कोइनोडर्म। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इंग्रेशन ऑफ वाटर हुआ। एरो से मैंने बना रखा है, ब्लू कलर के एरो से, कि किस तरह से ऑस्टिया से, डर्मल ऑस्टिया से होता हुआ पानी जो सेंट्रल कैनाल है इसमें एंटर करता है। और फिर लास्ट में एक ये जो बड़ा सा एरो है, ये बड़ा एरो ये शो कर रहा है कि ये ऑस्क्यूलम से होता हुआ सारा पानी बाहर की तरफ चला गया। दिस इज द सिंपल मोस्ट या सबसे सिंपल टाइप का एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहलाता है। द सेकेंड वन कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड एज साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एग्जाम्पल आपको इसके नाम के साथ ही याद हो जाता है। द साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज लिटिल complexed when we compared it with the Ascon type. This type of canal system is the characteristic feature of the cycanoid sponges like Scypha, and the theoretical this canal system can be derived from the ascanoid type. और इस ascanoid type में various horizontal foldings बनी और wall में ये जो development हुआ, इसने further थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड कैटेगरी के साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को डेवलप किया। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा है, इसमें भी एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम दिखाई देता है, जो कि फर्दर साइकेनॉइड में चेंज होता है। ये भी इस चीज़ को प्रूवन करता है कि शायद साइकेनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है ये एस्केनॉइड टाइप से हुआ है। अब जो बॉडी वॉल है इस साइकेनॉइड स्पॉन्जेस की, इसमें टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट हैं। एक तो इसमें रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट हैं एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज इनकरेंट कैनाल्स। तो दो तरह की कैनाल्स इसमें हमें देखी। नंबर वन इज द रेडियल कैनाल एंड अनदर इज इनकरेंट कैनाल। ये जो दोनों जो कैनाल्स हैं, कौन कौन सी? रेडियल कैनाल्स एंड इनकरेंट कैनाल्स, ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और ऑल्टरनेट होती हैं एक दूसरे की। जो दोनों तरह की कैनाल्स हैं, कौन सी? रेडियल कैनाल्स एंड द इनकरेंट कैनाल्स, ये ब्लाइंडली एंड होती हैं बॉडी वॉल में और इंटरकनेक्टेड रहती हैं वेरियस टाइप के पोर्स से। ये जो इनकरेंट पोर्स रहते हैं इन बिटवीन द रेडियल कैनाल एंड द इनकरेंट कैनाल, इनको हमने कहा डर्मल ऑस्टिया एंड दे आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी. So these incurrent pores open into the incurrent canals. These incurrent canals are non-flagellated as they are lined by, जैसा कि हमने पहले कहा, पिनेकोसाइट्स, और इसमें कोइनोसाइट्स का कोई रोल हमें नहीं दिखाई देता. The incurrent canals lies into adjacent radial canal और वेरियस माइन्यूट ओपनिंग से ये एडेड रहती हैं. दीज आर कॉल्ड एज प्रोसोपाइल्स. दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो रेडियल कैनाल्स हैं ये फ्लैजिलेटेड हैं और उसमें अंदर की तरफ कोइनोसाइट्स का अरेंजमेंट रहता है. इनकरेंट कैनाल में क्या रहता है? पेनेकोसाइट्स,
और जो रेडियल कैनाल्स हैं उनमें हमें सिचुएटेड दिखाई देते हैं कोइनोसाइट्स. So these दोनों canals, the radial and the incurrent canals, open into the central spongocoel with the help of internal ostia, also called as the apopyle. In the Sycon type of canal system, the spongocoel is slightly narrow than the Scon type of canal system, and this is non-flagellated cavity which is lined by the pinacocyte, and it opens to the exterior through a excurrent opening. यहाँ पर भी excurrent opening वही है, osculum, which is similar to that the Scon type of the canal system. So the course of water current through the canal system can be represented as follows. सबसे पहले ingression of water किससे? With the help of dermal ostia. dermal ostia से water enter करेगा incurrent canal में. इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होता हुआ वाटर एंटर करेगा रेडियल कैनाल में. रेडियल कैनाल के एपोपाइल से होता हुआ वाटर एंटर करेगा स्पॉन्जोसील में. स्पॉन्जोसील से वाटर एंटर करेगा ऑस्क्यूलम में, और ऑस्क्यूलम के बाद ये वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा. डायग्रामेटिकली मैं इसको बताना चाहूँ तो साइकॉन और एस्कॉन में हम ये देखेंगे कि जो एस्कॉन था उसमें सीधा सीधा कैनाल्स थी और इसमें फोल्डिंग्स ऑफ कैनाल हो गई हैं. सो जो डर्मल ऑस्टिया हैं वो अभी भी बाहर की तरफ है. आपको रेड लाइनिंग में डर्मल ऑस्टिया दिखाई दे रहे हैं. लेकिन अगर आपको एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम याद है तो उसमें सिंगल ओपनिंग सीधे स्पॉन्जोसील में आ रही थी. इसमें क्या हुआ कि पहले वाटर एंटर करता है इस रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल में एंटर करने के लिए जो पोर काम में आता है दैट इज प्रोसोपाइल. प्रोसोपाइल से जब वाटर रेडियल कैनाल में आ गया तो जो प्रोसोपाइल है उसके अंदर हमें कोइनोसाइट्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो जो वाटर है वो ऑस्टिया से एंटर किया रेडियल कैनाल में, वेरियस स्पोर्स से आया ये रेडियल कैनाल में. प्रोसोपाइल से इसका पोर था जो रेडियल कैनाल में वाटर को लेकर आया. अंदर की तरफ कोइनोसाइट्स प्रेजेंट थे. उसके बाद रेडियल कैनाल से एक पोर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एपोपाइल, और इस एपोपाइल से होता हुआ वाटर एंटर कर गया. कहाँ पर एंटर कर गया? इसकी सेंट्रल कैनाल में या स्पॉन्जोसील में. पूरा वाटर जब स्पॉन्जोसील में एंटर कर गया तो सेंटर में आपको एरो दिख रहे हैं कि वाटर फिर से ऑस्क्यूलम की तरफ मूव करेगा, और ऑस्क्यूलम से होता हुआ ये वाटर जो साइकॉन की बॉडी है इससे एग्जिट आउट कर जाएगा, एंड द आउटगोइंग ऑफ द वाटर हमें यहाँ पर दिखाई देगी. नेक्स्ट कैनाल सिस्टम इज रिगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. और रिगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम जो है ये हमें डीमोस्पोंजिया के लार्वी में दिखाई देता है, और इसका जो बेस है ये बहुत ब्रॉड होता है, एज वेल एज जो बॉडी की शेप है वो थोड़ी सी कोनिकल हो जाती है. एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मेसेनकाइमा हो जाती है, तो सबडर्मल स्पेसेस इसमें बनने लग जाती हैं बॉडी वॉल में, और जो ऑस्टिया की ओपनिंग होती है इस स्पेस में उसके लिए इनकरेंट कैनाल्स हेल्पफुल होती हैं. दीज इनकरेंट कैनाल्स ओपन बाय द सेम प्रोसोपाइल, और ये प्रोसोपाइल से एंटर होती हैं इनटू द फ्लैजिलेटेड कैनाल्स. फ्लैजिलेटेड कैनाल में अंदर की तरफ कोइनोसाइट्स का अरेंजमेंट है. ये जो फ्लैजिलेटेड कैनाल से इनकी ओपनिंग होगी एपोपाइल से एक्सक्रेंट कैनाल में, और अब जो वाटर है वो सीधे स्पॉन्जोसील में ना के एक और कैविटी में आता है दैट इज कॉल्ड एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी. अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स्ड हो गया ये सिस्टम. और जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है इसकी ओपनिंग आउटसाइड दिखाई दी ऑस्क्यूलम से जो कि अपेक्स पोजीशन पर सिचुएटेड है. सो द इनकरेंट एंड एक्सकरेंट कैनाल में बी कॉम्प्लेक्स्ड एंड ब्रांच्ड. और फिर हमने देखा कि रिगॉन टाइप से ही थोड़ा सा और डेवलप है. सो मैं एस्कॉन और साइकॉन के बाद सीधे स्विच करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ. दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकॉन और ल्यूकेनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. थर्ड टाइप का सिस्टम है, बाकी दोनों सिस्टम से ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड है, और इस कॉम्प्लेक्सेशन का जो रीज़न है, इस कॉम्प्लेक्सिटी का जो रीज़न है वो है अदर फोल्डिंग्स जो कि हो गई हैं.
So the leukonoid type of canal system results due to further foldings of the body wall of the second type of canal system. This canal system is the characteristics of the leukonoid type of sponges like spongilla, बड़ी complex type की sponge है. In this type the radial symmetry is lost. रेडियल जो सिमेट्री है पहली चीज तो वो खत्म हो गई. दूसरी चीज जो इसका कैनाल सिस्टम है उसमें जो सेंट्रल कैनाल है या सेंट्रल इसकी चैनल की मैंने बात करी स्पॉन्जोसील की, वो भी बहुत थिन हो गया है. सो दो नंबर 1 द रेडियल सिमेट्री इज लॉस्ट, रीजन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैनाल सिस्टम एंड द रिजल्ट इज एन इर्रेगुलर सिमेट्री. सो the flagellated chambers are small in this type of canal system compared to that of the ascenoid या cycloid type का system canal की जो हमने बात करी. These chambers are lined by the coinocytes and are spherical in shape and all other spaces are lined by the pinacocytes. So anter पर हमें coinocytes से encounter हो जाता है इन pores का, और बाकी जितनी भी सारी space है उसमें pinacocytes properly distributed हो जाता है. The incurrent canals open into the flagellated chambers, और इन flagellated chambers में ये आते हैं एक pore के through, that is also called as prosopile. These the flagellated chamber in turn communicate with the excurrent canal, और apopyle से ये इन जो flagellated जो मेरी chambers बने हुए हैं इसमें entry of water हो जाती है. And the excurrent canal developed as a result of shrinkage and division of the spongocoel. Spongocoel का ही further division हुआ है. अभी आपको डायग्राम में दिखा दूंगी कि spongocoel कितनी contract हो गई है सिस्टम में. The large and spacious जो spongocoel थी which is present in the ascenoid and cycloid type of canal system is totally absent here. Here the spongocoel is much reduced. This excurrent canal finally communicate with the outside with the help of osculum. Osculum की presence हमें यहाँ पे दिखती है. And the course of current, water current through the canal system can be represented in the following manner. कौन सा manner है? Number 1, the ingression of water किससे हुआ? dermal ostia से. Then incurrent canal में ये आया है water किससे? prosopile से. फिर ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाता है एपोपाइल से, और फिर एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ ये ऑस्क्यूलम में जाता है और वाटर बॉडी के बाहर की तरफ स्पिट आउट कर दिया जाता है. ये देखिए आप डायग्राम देखिए, ये स्पॉन्जोसील आप देखो इसके सेंटर में कितनी स्लिम सी थिन सी हो गई है ना. और बाकी देखना शुरू करें तो वही डर्मल ऑस्टिया है बाहर की तरफ, लेकिन इस डर्मल ऑस्टिया से जो पानी आया है ये छोटी छोटी गोल गोल जो चैम्बर्स हैं उनमें आ गया है, जिनको मैंने फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहा. इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर में प्रोसोपाइल से वाटर की एंट्री है, पहले इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आ रहा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से प्रोसोपाइल में जा रहा है, प्रोसोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट चैनल में जा रहा है, एक्सकरेंट चैनल के एपोपाइल से होता हुआ ये फिर से सेंट्रल स्पॉन्जोसील में जा रहा है, और फाइनली ये ऑस्क्यूलम से होता हुआ बॉडी से बाहर स्पिट आउट कर दिया गया है. और आप ये देखो कि इसमें जो स्पॉन्जोसील है वो कितनी श्रंकन है, और जो स्ट्रक्चर ऑफ कैनाल सिस्टम है उसकी वजह से बॉडी बहुत ही इरेगुलर शेप की हमें दिखाई देती है. उसके अलावा ये जो मैंने आपको रेगॉन सिस्टम बताया था, इसमें मैंने आपको अभी अभी जो ल्यूकेनॉइड टाइप दिखाया है, इसमें ल्यूकेनॉइड जो है ये फर्दर और भी डेवलप हो सकता है, जिसको यूरिपायरलस टाइप भी कहते हैं, एफोडल टाइप में भी बांट सकते हैं और डाइफोडल टाइप में भी बांट सकते हैं. क्या सब में डिफरेंस है? पहला जो ल्यूकेनॉइड है, ल्यूकेनॉइड का भी ये सिंपलेस्ट सिस्टम है. इसमें जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक्सकरेंट चैनल से, और फिर एपोपाइल के थ्रू जो वाटर है वो मूव करता है. वेयरएज जो एफोडल है इसमें एपोपाइल का जो मूवमेंट है वो और फर्दर नैरो चैम्बर्स में हो जाता है, जिनको एफोडा कहते हैं, और फिर उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद पानी दूसरे चैम्बर में जाता है. और तीसरा डाइफोडल चैम्बर है, इसमें ये जो नैरो ट्यूब्यूल्स बनती हैं ये
बहुत सारे छोटे छोटे इनकरेंट और फ्लैजिलेटेड चैम्बर में बंटती है और इससे बहुत इरेगुलरिटी ऑफ शेप आ जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो यूरीपायरोलस, एफोडल और डाइफ्लोडल अगर आप ल्यूकेन टाइप में लिख दें तो वेल एंड गुड, और नहीं लिखते हैं तो भी आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने ये तीनों चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बताई हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये कैनाल सिस्टम में फर्दर कॉम्प्लेक्स होती ही चली जाती हैं। नंबर ऑफ कैनाल्स इसमें बढ़ते ही चले जाते हैं। इतनी सारी कैनाल्स बनने लग जाती हैं मेज़ की तरह, भूल भुलैया की तरह, कि वाटर का जो मूवमेंट है या वाटर का जो करंट है वो बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से मूव करता चला जाता है। किस तरीके से इस करंट का प्रोडक्शन किया जाता है? सो नंबर 1, द एंटरिंग वाटर किससे होता है? थ्रू ऑस्टिया। किस में होता है? इनटू द बॉडी। इसके लिए एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये प्रेशर कौन क्रिएट करता है? बॉडी में सिचुएटेड इनकरेंट कैनाल। जैसे ही इनकरेंट कैनाल में वाटर की कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, ये प्रेशर क्रिएट करता है और कब उस प्रेशर की वजह से वाटर अंदर की तरफ आने लग जाता है। नंबर 2, जब ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर की तरफ निकलने लग जाता है तो एक्सकरेंट कैनाल एक प्रेशर क्रिएट करती हैं और इस प्रेशर की वजह से वाटर का जो चारों तरफ का सक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इनकरेंट कैनाल्स हैं और जो एक्सकरेंट कैनाल हैं इनका प्रेशर मेंटेन रहता है। जैसे ही ये प्रेशर डिफरेंट होने लग जाता है वैसे ही चैम्बर्स में वाटर का इनटेक बिगिन हो जाता है। फाइनली क्या क्या फंक्शंस हैं इन कैनाल सिस्टम के? तो मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि पहला जो फंक्शन है कैनाल सिस्टम का, दिस कैनाल सिस्टम सर्व्स द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन. It is regarded as a highway of the food through the body cells in the radial canal with the help of flagella which capture the food particles. The water current are produced by the flagella. Thus the water flows into the central cavity or spongocoel. The small food particles जो कि होते हैं zooplanktons, phytoplanktons, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डाइटम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं या पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक डैब्रीज हैं, इन सब का इंजेक्शन होने लग जाता है सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में और उसका डाइजेशन भी होने लग जाता है। जो भी डाइजेशन है ये इंट्रासेल्यूलर है। रॉबर्ट ग्रेंट ने फर्स्टली इसका स्टडी किया था, वाटर कैनाल सिस्टम का भी स्टडी किया था और इसके लिए उन्होंने फूड पार्टिकल्स को एसीटोकार्मीन या कार्मीन से स्टेन कर दिया था। तो वो जिस तरह से बॉडी में एंटर किए, एंटर करने के बाद मूव किए, मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि ऑस्टिया से ही वाटर आएगा, उसके बाद वो इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर प्रोसोपाइल में आएगा, फिर रेडियल कैनाल में आएगा, फिर एपोपाइल में जाएगा, फिर इनकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील में जाएगा। तो ये सिस्टम इसलिए है कि उसके ऊपर एक स्टेन लगा रखी है कार्मीन की। तो जैसे जैसे वो बॉडी में मूव करता है वैसे वैसे हमें कैनाल सिस्टम दिखाई देता है। और ये जो कैनाल सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से तो नहीं हम कंपेयर कर सकते, पर हाँ हायर एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन इज पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन। Second function, in sponges, as a result of development of elaborate canal system, the massive growth is found कि जैसे जैसे evolution में sponges आगे की कैटेगरी में पहुंची, growth of system हमें इन canal system से study किया जा सकता है। Number 3, this streaming current of water have dissolved air. एयर की जगह अगर मैं कहूँ डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, therefore the gaseous exchange or the respiration takes place in the cell. The oxygen is taken in by the simple process of diffusion and the carbon dioxide is given out. The respiration भी जो हुआ है that is intracellular in nature. Fourth function is the function of the canal system is also called as excretory. क्यों? क्योंकि the current of water जो है which passes outside the osculum remove the carbonic acid, जो भी कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 का फॉर्मेशन होता है और बाकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस बने, एक्वेटिक एनिमल हैं तो ये अमोनिया ही होगा या सीधे नाइट्रेट्स का ही रिमूवल होगा। सो जो कैनाल सिस्टम है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर की तरफ
स्पिट आउट करने के भी काम में आते हैं। एंड लास्ट, द पर्पज ऑफ द कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो टू इंक्रीज क्या, द सरफेस एरिया ऑफ द एनिमल इन द वाटर। This is a characteristic point by which increase of volume which is allowed by keeping the ratio of the surface of the volume। तो बॉडी की सरफेस इंक्रीज करने का काम करता है।